Hi Sanya, Hi Arik. how are you not doing? Sorry for the long pause. चल रही है जिंदगी कट रही है. What about you? क्यों अरे जिंदगी तो कभी कभी दौड़ती है, रुकती है, चलती रहती है, कभी कभी उड़ भी जाती है. So it's pretty mixed bag actually, and I've learned to live with it because that's the best you can do. Sail through What it. else can you do? You have to live it. No, sometimes you can build dams, you can build boats, but sometimes I hate going with the flow. So at least कुछ स्ट्रक्चर बना के फिर आगे बढ़ते हैं. बट हाँ, हो जाता है. पिछले हफ्ते या पिछले बार जब भी एपिसोड था, मेरी आवाज थोड़ी कमजोर सी थी, थोड़ी सैड सैड सी थी बिकॉज मेरा फ्रेशली दिल टूटा हुआ था. सो भाई ये इंसान जबरदस्ती के ऐसे मनगढ़ंत सिनेरियो बना लेता है, फिर उस पे अपना दिल लगा भी लेता है और दिल तोड़ भी लेता है. लुक हु इज टॉकिंग. Yeah, right, whatever. Anyway, so okay, today we're going to do something different. We are thinking we are going to break down this topic into 3 or 4 mini episodes. So we're going to bring it a mini series Yes. about the common dating terms or new dating terms that have emerged, such as situationships, benching, groundhogging, and so forth. Today in the mini series, the first episode is about the games that people play. So these terms are related to how people play a game in today's dating scenario, and we're going to tell you the definitions of these, and then we're also going to discuss a little bit about what we've seen each our dating lives in what has happened to us and what we've seen in other people's lives. So okay, so coming to the first term, the first word is benching, obviously. So benching, as you know, कि आप किसी फुटबॉल टीम को या क्रिकेट टीम को होते हो तो आप एक बेंच पे उठा के रखते हो, मतलब आप एक रिजर्व प्लेयर रखते हो, राइट? सो that is what it means. So if you have a person in reserve as an option, आप जिसको डेट एक्टिवली नहीं कर रहे हो, बट आप सोचते हो कि कहीं ना कहीं मैं इसको हर्ट ना करूं ताकि कभी और जाके ये मेरे साथ आ जाए, या if I can ever date them, that's why you actually keep them in reserve. So you're neither going ahead or neither actually actively dating them, but you're actually keeping them in your life so that you have a safe option. What do you have to feel? What do you feel about that, Sanya? Yeah, many people do this. Also, I think benching has become the rage now after situationships. This is catching up to the point. First of all, my mom is someone who's very modern and knows all of these terms. If she doesn't, then मेरे through उन्हें पता लग जाता है. But then she was saying something regarding, अरे यार इसको क्या बोलते हैं? I was talking to her about a scenario. I'm like, situation. She's like, no, the other word. I'm like, oh, benching. She's like, yes, this one. I'm like, okay, so this has, and a couple of people told me. But anyway, I think yeah, a lot of us consciously or subconsciously do this because we feel कि यार अकेले किसको रहना है at the end of the day, right? So people are like, कुछ लोग तो होते हैं ऐसे से कि वो मतलब होंगे इतने वाइल्ड कि वो एक्टिवली किसी को sort of on the bench रख रहे हैं कि as a reserve person. But some people probably are doing it subconsciously क्योंकि उन्हें वही है, they because वो भी होता है ना कई लोगों का कि ओ मेरे बंदे से तो अच्छी नहीं चल रही है, या शायद बहुत लड़ाई झगड़े हो या कैसा हो कैसे नहीं पता नहीं, कभी भी खत्म हो जाए, बट इस इंसान के पास आई कैन ऑलवेज कम बैक टू, तो उससे वो कट जाएगा, तो उसके बाद प्रोबेबली आई हैव वन पर्सन, मुझे आई डोंट हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस अगेन. आई डोंट कंडोन इट, बट पीपल डू इट. Yeah, and I think that also the benching actually differs when you're younger, when you're much younger. Like in our last episode, we spoke about dating in your early 20s versus your late 20s and 30s. I think benching, when early on, you're like actually having somebody in reserve in terms of you could also be partially dating them, where the person would not know. थोड़ी थोड़ी आपने उनको हल्की दौड़ दे रखी है ताकि वो आपके पास भी है, बट यू नॉट फुली कमिटिंग. बट इन द सेंस ऑफ लेट 20s और अर्ली 30s, जब आप अपने मैरिज के लिए किसी को देख रहे हो, बेंचिंग इज एन ऑप्शन वेर यू एक्चुअली सर्कल बैक टू. सो आपने किसी को अभी पार्क कर रखा है, दैट इज सो I would not say that benching is a positive or a negative term. It again depends. So अगर आपको एक सिंगल डिसीजन लेना है लाइफ में किसी के साथ सेटल करने का, तो आप उसको बात करो, आपको नहीं समझ में आया, then go around, talk to other people, because I keep saying that contrast is very important. Unless you talk to 4 other people, you're not going to know कि सबसे बढ़िया कौन था और किसके विचार सबसे अच्छे थे, या कौन सुलझा हुआ है कौन नहीं है. So in that term, sometimes you just keep them on hold, and ऐसा कई बार हुआ है. I've heard a lot of people, oh, they ultimately came back to the people. Yeah, this is very finally and common. get married. This is very common in arranged marriage setup. मैंने तो बहुत सुने हैं, मतलब ये मैं अपनी मॉम से भी बात कर रही थी, एंड कई लोगों की वैसे शादी होती है कि दे थिंक यही करते हैं लोग कि 4-5 लोगों से बात कर ली, ठीक ठाक बात हुई, उतनी खास नहीं हुई, ना हाँ बोला ना बोला, बट जब वो पूरा घाट घाट का पानी पी क्या करने को अच्छा नहीं लगा, तो देयर लाइक चलो ठीक है यार इसी से कर दो. पीपल एक्चुअली कम बैक अ लॉट एंड देन गेट मैरिड टू प्रोबेबली द फर्स्ट पर्सन जो उन्हें अच्छा लगा होगा, समथिंग लाइक दैट. सो हाँ, लोग 4-5 लोगों से साथ में साइमल्टेनियसली बात करते हैं, देन दे कम बैक टू देम, बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज आई एम लाइक,
if you can't be sure of me in this moment, I don't want to be your option, man. मुझे भी समझ आ रहा है कि तुम वापस पलट के आए हो. That means तुम मैं खाली तो बैठे नहीं थे, तुम 5 लोगों से बात करके अब तुम्हें मेरी इंपॉर्टेंस पता लग रही है, तब क्यों नहीं समझ आई? नहीं बात समझता नहीं. There is nothing wrong, right? अगर मैं तो ना एक्सेप्ट करूंगा. नहीं सुनो, अगर तुम्हें कल को, और तुम्हारे ऊपर ना, तुमने अभी तक शायद करा नहीं इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, बट इमेजिन इफ यू हैपन टू मीट समबडी बट यू थॉट ओ यार दिस पर्सन इज मीडियम वार्म, इज नॉट टू हॉट फ्रॉम माय चॉइस, नॉट हॉट इन अपीयरेंस वाइज बट नॉट टू हॉट ऑन माय चॉइस कि भाई इसी को मेरे को पिक करना है. वो वार्म चॉइस था, यूर लाइक चलो ठीक है, लाइक बात करते हैं, आप भी 4 लोगों से बात करोगे, फिर आपको रियलाइज होगा यार बाकी लोग इतने ही गर्म है, कुछ ज्यादा ही गर्म है, बेकार ही है, कि चलो दिस पर्सन मेड सेंस. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बेंचिंग. लिसन, एनीवेज women also and men also ड्यूरिंग देयर शॉपिंग, जब आप 4 दुकानें पूछ के बार्गेन करके खरीद सकते हो, तो आपका लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है, उसमें आप थोड़ा सा क्या कहते हैं इधर उधर क्यों नहीं देखोगे. मैं तो इनकरेज करता हूँ, मैं अपनी बहन को बोलता हूँ भाई गो ऑन डेट्स एंड लुक एट द अदर गाइज, एटलीस्ट मीट दीज एसोल्स आल्सो, बिकॉज अगर मिलोगे तभी तो पता लगेगा कि कैसे किसको अवॉइड करना है, नहीं तो आपको सीखोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा. इफ यू ऑलवेज गेट गुड थिंग्स, व्हेनेवर यू कम अक्रॉस वन थिंग दैट इज बैड, यू आर गोइंग टू ब्रेक सो हार्ड. सो इसीलिए देयर इज नथिंग रॉन्ग यार, चॉइस लाइफ चॉइस है ना. सुनो, ऑन द फ्लिप साइड, अगर आपने पहले बार में ही किसी को आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपकी मान लो शादी हो जाती है, आफ्टर अ सर्टेन व्हाइल आप दोनों ग्रो करोगे, चेंज हो जाओगे, अगर वो ग्रोथ आपको पसंद नहीं आ रही, आप वैसे भी उसको छोड़ के जाओगे, एंड दैट्स एन ऑप्शन दीस डेज. तो व्हाट इज यार, तो तुम यही करते रह जाओ कि ये 4 का सेट, 10 का सेट, ये तो कितना बड़ा भी सेट हो सकता है ना. एट सम पॉइंट यू ऑल्सो हैव टू गिव योरसेल्फ दैट डेडलाइन कि भाई दिमाग में कि यार हो गया, मैं कितना ढूंढने वाला, बिकॉज एब्सोल्युटली वो कितना देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर. हार्ड स्टॉप आपको कभी तो लगाना है, बट एटलीस्ट आप क्या 4 लोगों से बिना बात करे आप शादी कर लोगे? वुड यू डू इट? नहीं, मैं तो 10 लोगों से बात करूंगी, मैंने करी भी हुई है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बट मैं एक इंसान को जब टाटा बाय बाय बोल रही हूँ तो बस बोल दिया बाय बाय. आई एम नॉट कीपिंग देम एज एन ऑप्शन. खत्म तो खत्म. अगर अच्छे लगे तो आई प्रोसीड विद देम. आई एम नॉट ऑफ द मेंटालिटी दैट आई थिंक ओ देयर इज बेटर आउट देयर, बिकॉज आई विल टेल यू समथिंग, देयर इज ऑब्वियसली समथिंग बेटर आउट देयर. पर अगर तुम्हें एक इंसान थोड़ा ठीक लग रहा है, सब चीजें अच्छी लग रही है, तो देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद इट एंड ट्राई इट आउट एंड लिव इट आउट विद दैट पर्सन. और अगर नहीं वर्कआउट किया देन स्टार्ट द प्रोसेस अगेन. हाँ, अगर बिल्कुल ही कोई पसंद नहीं आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. देन ऑब्वियसली गो टू द सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. बट अगर तुम्हें एक बार में कोई अच्छा लग रहा है तो ट्राई टू यही प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की, कि हम एफर्ट नहीं डालते, कि हमें लग रहा है कि अरे मैं वो और 4 ऑप्शन ढूंढ के आती हूँ, फिर आऊंगा तुम पे वापस. क्यों भाई, मुझे भी समझ आया तुम वापस आए हो, प्लीज गो अवे फ्रॉम माय लाइफ. नहीं. So I cannot be an but option. on the flip side also, listen, I'm not an advocate for benching for anything otherwise. I'm also giving you a different perspective. कि मान लो आपने एक बंदे को चूज करा, according to you also and a lot of other people, the first thing that anybody would want to do is date them for a while, right? Let's say 6 महीना 8 महीना आपने डेट करा, which is a very natural thing. तो आपको 6 महीने बाद वो पसंद नहीं आएगा, आप उसको आपने 6 महीने खराब करे ना, उससे अच्छा आप क्या कहते हैं, वो तो किसी के साथ भी करना पड़ेगा ना. तो एग्जैक्टली. तो धीरे धीरे तो अरेंज मैरिज वाला सेटअप था उसका, आज क्यों इतना मतलब रेलेवेंस वापस आ रहा है, इज बिकॉज आप तब क्या करते थे, आप फ्रिवलेसली एक रिलेशनशिप में नहीं घुस जाते थे, जस्ट टू आजमा के देखते हैं या पता लगा लेते हैं, फिगर आउट द वाइब. टॉकिंग स्टेज, एग्जैक्टली. सो आप टॉकिंग स्टेज 5 लोगों के साथ कर सकते हो, 5 से फिर 2 पे आ जाओ, 2 से फिर 1 को चूज कर लो. हाँ, वो ठीक है. तो पर ये नहीं है कि तुमने एक बार किससे मिल लिया और तुम कोई कुछ ट्राई ही नहीं कर रहे थे, बिल्कुल तुमने उनसे बातें छोड़ दी और अचानक से तुम हाई बोल रहे हो 2 महीने के बाद. दैट इज नॉट कूल विद मी. इफ यू आर मेंटेनिंग द टॉकिंग स्टेज विद 5 पीपल फॉर 2 whole months एंड देन यू डिसाइडेड ऑन समथिंग, तो ठीक है. ठीक है. If you have the bandwidth to nurture 5 not relationships but 5 people के साथ connections. Okay, what are the signs or consequences of benching? So पहले साइंस पे आते हैं. आपको कैसे पता लग सकता है कि आपको कोई बेंच करा रहा है? आई थिंक यही, अगर तुम देखते हो कि यार किसी एक से बात हुई और फिर ये कई बार होता है और उसके बाद अचानक से बात होनी बंद हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है एंड ऑल ऑफ दैट, तो टेक इट एज अ साइन कि दे आर टॉकिंग टू अदर पीपल एंड दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन यू. उसके बाद मेरे साथ खुद हो चुका है. आई हैव डिलीटेड नंबर्स एंड पीपल हैव कम बैक सेइंग हे हाउ आर यू डूइंग एंड ऑल, हाउ इज योर सर्च गोइंग. आई एम लाइक bitch, move the fuck out of my line. मैंने तेरा नंबर, and I literally said who's this, I don't remember, I don't have your name. अगर तूने मुझे पहले मना कर दिया या मैंने तुझे मना कर दिया या फिर you so called lost interest, not giving you a second chance, क्या मैं ऑप्शन रिजर्व में नहीं बैठी हूँ, that is a very telltale sign कि लोग 2 महीने बाद आ रहे हैं. और बहुत लोग आते, believe me, बहुत लोग आते हैं, ठीक है. So मैं तो मुंह पे बोलती हूँ मुझे नहीं आता, बिकॉज सही में मेरे पे +9 का नंबर आता है. मैंने कहा I don't remember who you are, sorry. So you have to show some sort of respect to the person, otherwise मुंह पे बोल के जाओ कि भाई टेक दैट हार्ड डिसीजन कि नहीं, मुझे तुम में नहीं पसंद आया, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. सो दैट इज वन साइन. और जो नॉर्मल अर्ली 20s वाला बेंचिंग साइन होता है उसमें तो समझ ही आता है कि यू वांट टू कमिट, द अदर पर्सन डज नॉट. और सी, बेंचिंग हैपेंस ओनली व्हेन या तो दोनों बेंच कर रहे होंगे या एक इंसान इज इन लव विद द पर्सन एंड द सेकंड पर्सन इज लाइक
already in a relationship with probably someone else, तो वो इसे भी नहीं छोड़ा इसे भी नहीं छोड़ा sort of वाली situation हो सकती है. तो हाँ ये सारे बहुत सारे scenarios है. Yeah, also, I agree to that, but I will also add another point, which is the sign of benching is if a person is actually telling you that they love you, but they're not committing to marriage, or they're टाले जा रहे हैं कि यार शादी देखेंगे 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 सोचेंगे आई एम नॉट देयर बिकॉज इट हैज हैपेंड टू अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी वेयर आई हैव सीन कि लड़का तो एक लड़की के साथ डेट कर रहा था उसको कमिट नहीं कर रहा था सडनली उसके साथ ब्रेकअप करता है और अगले उसके 1-1.5 महीने में शादी हो जाती है राइट that is a very clear telltale sign ki if a person is not willing to commit or talk about it listen for various reasons you have issues ki nahi abhi shaadi nahi kar sakte the time is not right or people are not emotionally ready or financially ready or whatever that reason might be or maybe कुंडली मैच नहीं है अभी या कुंडली मैच तो पहले ही करा लेनी चाहिए not कुंडली मैच in the sense कि भाई टाइम नहीं आया है like in somebody's life कि भाई इस उम्र के बाद शादी करनी है those parts of the कुंडली right so anyways whatever reason might be but अगर if the person is willing to talk it out and gives you assurances and gives you कि चलो ठीक है कोई बात नहीं शादी नहीं हो पाती रोका कर लेते हैं एटलीस्ट घर पे बता देते हैं all of those things is part of they taking initiative of wanting to settle down with you they being serious about you but if they actually keep टालोफाइंग की यार नहीं देखते हैं बात करेंगे एंड देन ऑल ऑफ दैट एंड उनकी उम्र बढ़ती जा रही है डेफिनेटली दे आर बेंचिंग यू अराउंड सो दैट्स व्हाट आई थिंक now let's quickly come to the consequences before we move into the next one. The consequences of benching, I think, are very, very hard on the people who've been benched. I think you feel like आपकी value degrade हो रही है. People keep constantly, having fun bits with you, but they don't commit with you. It takes a toll on your, self-confidence and your self-worth and self-image. I think that's a very wrong thing. I think everybody as a human wants to be seen, feel loved, and seen, appreciated, respected and loved. अगर वो नहीं मिलता है तो obviously बहुत दुख होता है and some people actually go to depression after a series of incidences happening back to back. So yeah, definitely. So yeah, I think another point that comes to my head before we close the whole benching thing is how do we navigate benching? It's the opposite of जब आपके साथ benching हो रही है आप identify कर पा रहे हो signs आप एक काम करो आप सीधा जाके पूछो ultimatum दो करनी है तो बता नहीं तो मेरे पास और option है नहीं तो मैं कोई और option देखूं. You have to move on. You have to be strong and you have to set a hard boundary कि नहीं भाई मेरी भी तुम्हारी ये है तो मेरी भी boundary. I'm not going to wait around for you. You have to tell them that. Absolutely. चलो. So actually to sum it up I think benching is keeping someone on the back burner or आपने एक ऑप्शन सेट कर रखा है सेम वे नेक्स्ट थिंग इज ब्रेड क्रम्बिंग तो ब्रेड क्रम्बिंग इज द आर्ट ऑफ सेंडिंग मिक्स सिग्नल्स ओके सो जो डेफिनेशन होता है ब्रेड क्रम्बिंग का ये होता है कि आप किसको लीड कर रहे हो विद स्पेसिफिक अफर्मेशंस या आप उनको थोड़ा प्यार दिखा रहे हो बट आप उनको पूरी तरह से प्यार नहीं कर रहे या कमिट नहीं कर रहे. एग्जैक्टली कभी-कभी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं नहीं कर रहे तो गायब भी हो जा रहे हैं दैट इज ब्रेड क्रम्बिंग. कि आप हफ्ते भर आप किसी के साथ बात कर रहे हो और फिर उसका 2 हफ्ते गायब हो अगले महीने फिर आ गए और उसके बाद वो कह रहे हो मैं नहीं कर पा रहा मैं बिजी हूं एग्जैक्टली बहुत बहाने बनाते हैं राइट सो दैट इज व्हाट ब्रेड क्रम्बिंग इज आल्सो इससे क्या होता है कि ब्रेड क्रम्स मतलब क्या होता है ये आती है फ्रॉम विच थिंग वो एक फेरी टेल थी ना हाँ कौन सी वाली थी नाम भूल रहा हूँ मैं एनीवे हैंसेल एंड ग्रेटल यस सो उसमें ये होता है कि भाई किसी को ढूंढने के लिए आप पीछे पीछे जाते हो तो ब्रेड क्रम एक्चुअली छोड़े इसलिए जाते हैं इट्स पार्ट ऑफ बेंचिंग ओनली बिकॉज इंसान चाहता है कि यार ये हाथ से ना निकल जाए इसको हाथ में रखने के लिए मैं थोड़े थोड़े इसको खाना खिला देता हूँ मर ना जाए ब्रेड क्रमिंग क्या भी होती है कि इनको थोड़ा थोड़ा निवाला दे दो ताकि ये जिंदा रहे मेरे आसपास उसके बाद मैं नहीं चाहता कि इसको क्या हुआ जब उनका मन बन गया जब आपसे बोर हो गया तब तो आपको ब्रेकअप कर ही लेंगे पर तब तक आपके साथ ब्रेड क्रम्पिंग करते रहेंगे तो दैट इज व्हाट ब्रेड क्रम्पिंग इज हैव यू एवर सीन दैट हैपनिंग happened to one of my friends. So she was talking to a guy. They went on one amazing date together, and she was gaga over the guy. Oh, इतनी perfect date थी ये था वो था. Did everything right. I was like, at this point, I'm like, okay, I'll wait for the curtain to drop. But I did not say anything. And after a while, she was like, भाई एक हफ्ते से बंदे ने अच्छे से बात की उसके बाद बंदा गायब हो गया for like 2-3 weeks. So she was like, okay, ठीक है, he ghosted me या जैसा भी. She was a little bit heartbroken. She was like, ठीक है, I'll move on with it. फिर वो बंदा वापस आ गया आफ्टर 2 weeks saying कि मैं तो बहुत बिजी था मेरे ये काम थे मेरे वो काम थे फिर उसने एक बार शायद चांस दिया बोला ठीक है तो वही उसने दोबारा वही किया कि 2-3 दिन 4 दिन बाद की फिर गायब हो गया तो ये चीज 2 बार जब हुई तो आई थिंक आई टोल्ड हर कि प्लीज ब्लॉक दिस पर्सन फ्रॉम एवरीवेयर बिकॉज दिस इज क्लासिक ब्रेड क्रम्बिंग एंड ही विल नेवर कमिट टू यू तो इसीलिए स्टॉप सो दिस इज अ टेल ऑल साइन और ये लोग करते हैं दिस इज प्रिटी एविडेंट मेरे लिटरली आंखों के सामने किसी और के साथ होते हुए देखा तो आई एम लाइक नाम नहीं रिवील करूंगा लाइक नाम बोल रही लाइक इस बंदे के लिए नहीं जाना है और किसी भी बंदे ये बंदे को नहीं भाव देना हो गया तेरा
Let's talk about the psychological impact. I think more than benching, क्योंकि आप whatever reason आप by the time choose कर रहे हो, आप उनको गलत signals दे रहे हो. Brett Kambing is actually giving the wrong signals and telling a wrong side of the story कि मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ, मैं आता जाता रहता हूँ. That's why इसका जो psychological impact होता है वो ज्यादा होता है. वो ऐसे होता है क्योंकि आपको ना एक hope हो जाती है कि यार ये बंदा मेरे को एक दिन आएगा, मिलेगा, he'll come be with me, या आपको confusion हो रहा होता है कि यार is he not going to, what is it, आपकी anxiety बहुत बढ़ जाती है. And generally you get hooked to the idea of what could be, right? आप अपने दिमाग में महल बनाने लगते हो, आप बड़े बड़ी एक लाइफ इमेजिन कर लेते हो, और वो कर ही नहीं रहे पैरेलली आपके साथ, और इसीलिए जब वो छोड़ के जाते हैं आपके ऊपर बहुत हावी, बहुत एक्चुअली फिर थिंक ऑफ इट, उन्होंने कभी तुम्हें कमिट ही नहीं किया, छोड़ के क्या जाएंगे वो. बट हाँ ठीक है, बट आप बहुत लोग क्या कहते हैं, सपने सोच लेते हो. हाँ लोग सजा ही लेते हैं यार, इंसान का दिल बहुत ऐसा ही होता है, सपने तो सजा ही लेते हैं. So how do we deal with breadcrumbing? मतलब कैसे इसको रोका जाए? मतलब how can we get out of it? Hard boundaries. अगर तुम्हें किसी ने एक बार घोस्ट किया है, let the dead die in peace. Simple. एक बार तुमने मुझे घोस्ट किया, तुमने मेरी it is, by the way, ghosting people is a sign of disrespect. Someone has ghosted you once. Just leave it. Just let them die. Yep. Let them be little ghosts and go away from their life. जब वो तुम्हें वापस आ जा रहे हैं, then you literally should be in a position where like मैं तो करती हूँ ये चीज. If somebody fucking ghosts me, I'm like I delete their numbers, and I have literally done this to multiple people. Not even ghost, या फिर एक बार बात हुई और उसके बाद nobody pursued. Like ठीक है, I get the point कि तुम्हें नहीं interest होगा. I delete their numbers and I've actually said who's this, and then these people have actually मतलब to literally get back into their life, they're like, oh remember we talked, and I'm like, bro, no, bye bye. Yes, so I think setting a hard boundary and confronting them कि भाई चल क्या रहा है ये बता, तू आ जा नहीं सकता, and don't use me like a hotel. Like माँ मेरे को बोलती है कि तू घर को होटल की तरह यूज करता है, कभी कभी खाता कभी नहीं खाता है. सेम वे फील कि अगर कोई आ रहा है तुम्हारे पास, आके बार बार आ रहा है, जा रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है, उसको बोल भाई या तो अंदर रहना अंदर रहे, या तो बाहर रहना बाहर रहे. एग्जैक्टली, वो टू एंड फ्रो का है ही नहीं. एक बार व्हेन पीपल फक अप, लेट देम गो मैन. इतना क्या है, इतनी क्यों चांस है, लोगों की इतनी कमी हो गई है क्या? चूज बेटर फॉर योरसेल्फ. Cool. Now let's come to the third phrase, which is also interrelated, which is cushioning. Which अगर मैं इसको एक छोटे से संक्षिप्त तरीके से समझाऊं, which is having a plan B in the world of dating. कि भाई ये बेंचिंग से थोड़ा अलग है in terms की आप उनको और थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा अच्छे से उनको बचा के रख रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, बट आप फिर कमिट नहीं कर रहे हो. तो तुमने दोनों को ही कमिट नहीं किया, दैट मींस दोनों से अच्छे से बातें कर रहे हो. एक्चुअली नहीं, तो इसमें क्या कुशनिंग में क्या है, आप कंटिन्यूअसली फ्लर्ट करे जा रहे हो, आप अपना इंटरेस्ट दिखाए जा रहे हो. इंटरेस्टिंग, हाँ, इंटरेस्ट दिखाए जा रहे हो. I got it. बेंचिंग में क्या था, आप एकदम छोड़ के गए, ब्रेड क्रम्बिंग में आप गलत बोल रहे हो, बट कुशनिंग में आप एक्चुअली उनको वो सॉफ्ट फीलिंग दे रहे हो, वो नाइस फीलिंग दे रहे हो. यार ये तो सबसे खतरनाक लगा मुझे. क्यों क्योंकि यू आर लीडिंग पीपल ऑन ना, गलत बात है. बाकी लोगों में तो एटलीस्ट वही है, यू कैन अप्लाई द फिलॉसफी की लेट द डेड बी डेड एंड लेट देम डाई इन पीस इफ दे गोस्टेड यू या आर बेंचिंग यू एंड ऑल ऑफ दैट. पर इसमें तुम्हें पता ही नहीं लगेगा. अगर तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है, किसी और के साथ भी घूम रहा है, तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि अच्छा ये तो 2-4-5 लोगों के साथ सेम हरकतें कर रहा है. एग्जैक्टली. सो आई थिंक ऑल्सो पता है क्या, आई फील ये प्रोबेबली दिस इज टू ओल्ड स्कूल ऑफ मी, या फिर कुछ लोग जैसे इमोशनल हो जाते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डेटिंग और इवन फ्रिकिंग अरेंज मैरिजेस, बिकॉज अरेंज मैरिजेस ऑल्सो बिकम प्रॉपर डेटिंग वाला ही सीन वहां भी चल रहा है. तो जब तक तुम्हें कोई मुंह से बोल ना देना कि हाँ दिस इज एन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप, या यू हैव नॉट हैड द टॉक, डोंट बिलीव या एक्सेप्ट कि अरे हम तो हैं रिलेशनशिप में जस्ट बिकॉज तुमसे अच्छे से वो बातें कर रहा है. तुम वो यू हैव दैट टॉक विद देम. Yeah, also I've seen a lot of guys like be like women have told me that guys have asked them कि तुम कितने लड़कों से बात करी और तुम कितने और लड़कों को क्या कहते देखोगी. I'm like तेरे को क्या फर्क पड़ता है? I don't think you have. तू जब सेम चीज कर रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, वो कर रही है तो प्रॉब्लम है, because she is a woman, she can't do that. ये तो बहुत डबल स्टैंडर्ड मैंने सुने, इस पे तो हम एक एपिसोड कर सकते हैं, बट खैर for another time. Right. So many stories. Yeah, your latest story was pretty interesting. So we'll talk about that someday. I think we now have content for online dating stories part 2. That was a fun episode. Everybody enjoyed it. Yeah. So I have. In fact, I think मुझे आज ही मेरी एक फ्रेंड कह रही थी कि तू स्टैंड अप ट्राई कर, बहुत हो गया. आज मैंने उसको एक लेटेस्ट स्टोरी सुनाई. She was like, सानिया at this point you have enough content. तेरे को जाके हम स्टैंड अप पे स्टेज पे खड़ा कर रहे हैं, तू यही बोल दे यार, लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे. This is so, कहाँ से आते हैं ये लोग? मैंने कहा exactly. Right. So but yeah, fun. Yeah. So, जैसे हमने देखा कि पिछले वाले का हमारे को मतलब ब्रेड क्रम्बिंग का बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, इसका
एक्चुअली एक एथिकल इम्प्लीकेशन है, बिकॉज आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये सॉफ्ट क्वेश्चनिंग तब तक हो रही है जब तक वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा. मे बी दे आर एक्चुअली डूइंग इट, वो आपके लिए पता करना बहुत मुश्किल है, बट इसके एथिकल इम्प्लीकेशन बहुत होते हैं कि आप एक ग्रे एरिया में, आपको नहीं पता कि ये ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, बिट्रे करेगा नहीं करेगा. तो इसमें ये होता है आपको पता लगाना है कि इंसान की फितरत कैसी है, कि यार वो जो ये बात कर रहा है, कैन ही वॉक द टॉक और नॉट इन द फर्स्ट प्लेस. सो मोर देन इट हैविंग अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन यू, यस, व्हिच अगेन दिस विल आल्सो हैव, बट this might feel like यार इसने तो प्यार किया था, for whatever reason didn't work out and you get out of a relationship. So generally figure out कि कैसे you have to understand if the person actually loves you or not and is really interested. Check for consistency, right? If a guy is telling you प्यार से चिपड़ी चुपड़ी बातें, वो बहुत बातें कर सकता है, and a lot of women and a lot of men also fall for good बातें, अगर बातों में क्या कहते हैं किसी ने फंसा लिया है. Because I keep reiterating this thing, जो मैंने जाकिर खान को भी बोलते हुए सुना है कि it's not men with swords or with bravado or with macho-ness and all of those things or good looks have always sweet talkers, had sweet the talkers attention of women or the adoration of women. It is the men who've been good with words. चाहे आप कवि ले लो, लेखक ले लो, poets ले लो, singers ले लो, for that matter, right? Lyricists ले लो, story writers ले लो. Those guys have more power, and that's why it said the pen is mightier than sword. Also people who have a good sense of humor. Exactly, it's very That's important. my soft spot. Yes. So hint guys, अगर तुम्हारा sense of humor बहुत तगड़ा और अगर तुम stand up comedian हो या करने जा रहे हो, please hit up Sania and please ask her out on a date. She'll definitely go out on a date with you. अरे यार कैसे ऐसे desperate sound कर रहा है, मुझे ऐसे कौन नहीं, करता मतलब है? actively dating also, मतलब we are dating, we are looking out for other people. Looking for people, dating तो तब होगा अगर कुछ किसी के साथ हो रहा है. I'm going अच्छा out चलो and meeting एक people. डेफिनेशन बता देते हैं, for a lot of people don't understand this. हाँ. So अगर आप अमेरिकन सीरीज वगैरह बहुत देखते हो और ये पूरा हमारा जो कल्चर डेटिंग वाला मॉडर्न कल्चर हो रहा है इंडिया में भी, इट्स ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट अलॉट, राइट? सो डेटिंग क्या होता है? सो इट्स अ डेट जब बोला जाता है, इट्स जनरली कि इट्स एन time engagement between two people. It's a date, could be between playful friends also, it could be between romantic partners also, or new people you've met on a dating app also, versus dating जो टर्म है that we are dating or I am dating. Dating is a term जहाँ पे आप multiple partners के साथ भी dates पे जा रहे हो, that is a phase of dating. और वी आर डेटिंग जब आप बोलते हो तब आप दोनों मल्टीपल डेट्स पे जा रहे हो, बट अभी कुछ हार्ड सेट नहीं हुआ है, यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग. 5 डेट्स पे गए हो, 6 डेट्स पे गए हो, हाँ, टॉकिंग स्टेज का बड़ा भाई है. So that is dating. Okay. So that brings us to questioning, is a little sly but could also be nice, which could lead to love and love marriages and all of that, but कई बार generally नहीं हो पाता है, so please keep an eye out for that. Now we're going to talk about the second last thing, which is pocketing. Okay, so it is keeping a relationship hidden from the public eye. Okay. Oh, I hate that. इसमें क्या होता है कि बहुत लोग क्या कहते हैं, अपने दोस्तों को अपने रिलेशनशिप से या अपने सोशल मीडिया से लोगों को छुपाते हैं कि लोगों को पता ना लगे कि they want to appear single, ना? They want to. I think the motivations are different. Some people nowadays say कि नहीं बताना चाहिए, कि चलो ठीक है पता. Don't give me that nazar logic. That is the worst logic that you can give. नहीं, जो लोग देते हैं. I'll tell you. नजर पे I want to say नजर is a real thing, but what I will It say, is real, but what I will say is कि आप रोज फोटो मत डालो ताकि नजर ना लगे. बीच में आपने ऐलान कर दिया, एक बार एक फोटो डाल दिया आपके पोस्ट में, cannot in just stories, आपके पोस्ट में किसके साथ फोटो है, कुछ है बताते हुए, तो ठीक है, समझ में आती है बात. एंड मुझे तो ये भी लगता है कि सोशल मीडिया जाए तेल लेने. आई थिंक whoever the most important people in your lives, अगर आप उन्हीं को नहीं बता रहे तो सोशल मीडिया को बता के क्या करोगे? बिकॉज़ सोशल मीडिया डज नॉट गिव अ दोनों को बताओ. आई से दोनों देखो, सोशल मीडिया पे आपको अकाउंटेबल कौन पकड़ रहा है? कोई भी नहीं पकड़ रहा. It is your family and it is your friends who will but actually... if they want to fuck around and they will find people through Instagram and social media, ना, which is why वहाँ पे वो और भी ज्यादा सिंगल अपने आप को बताना चाहते हैं. That is the whole logic behind it. कि वो नए बंदे बंदियां कहाँ से ढूंढेंगे? Instagram से ढूंढेंगे, Twitter से ढूंढेंगे. नहीं, बट कई लोग एक्चुअली कमिट भी नहीं करते हैं. कई लोग एक्चुअली बताना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मेरे दोस्त लोग जज करेंगे, मेरे दोस्त लोग को मैं बताऊंगी, अभी बहुत बताऊंगी तो दे विल बेयर इन ऑन द रिलेशनशिप. अगर हम पेरेंट्स को अभी बताएंगे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट. वो तो बोलेंगे कि यार नहीं ये तोड़ दो, कहते तुम शादी करो, सीरियस हो करो. सो दैट्स व्हाई मोटिवेशंस, आई एम नॉट सेइंग कि पॉकेटिंग इज अगेन अ नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म. यू कैन कीप इट hidden for the right reasons also. I think नहीं, there should be a duration. तुम पहले obviously तुरंत 10 दिन में मत बता दो, but within 2-3 months I think you should definitely tell them. Tell all the people in your circle. Yeah, well, so that is the whole point, right? Like, I think all of this can actually
the motivation can come from actually fear of rejection or the commitment issues है आप में, तो कुछ भी reason हो सकता है. But at certain point in time अगर आपको actually move forward करना है इस situation से, the best thing to do is introduce a little bit of transparency and tell them with respect कि यार this is a point where I think it is getting serious. Do you want to make it official? And by making it official, you say that we at least go tell it to the most confidant of people that we have कि जो जिन्हें हम अपने रोजमर्रा की बातें बताएं, चाहे वो तुम्हारी माँ है, चाहे तुम्हारा भाई है, बहन है, या तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स है, किसी को बताओ so that you don't go missing Monday and nobody has a clue कि क्या हो गया. ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी आती है ना थोड़ी, तो इट मेक्स द रिलेशनशिप रियल. अगर तुम्हारे सर्कल के लोगों को पता होता है तो तुम्हें भी एक वो आती है अकाउंटेबिलिटी कि ठीक है यार, आई एम डूइंग दिस सीरियसली, दिस इज नॉट जस्ट मी टाइम पास करने वाला. हालांकि टाइम पास करने वाले तो मुझे तो लोग अपने फैमिली से मिला के भी वो करके गए, सो वो भी आई थिंक इसका उल्टा ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि अगर तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस कराया गया तो तुम सोचो ये लड़का मेरे को लेके या लड़की लेके मेरे को बहुत सीरियस है. ऐसा कुछ नहीं, कई लोग बड़े रैंडमली भी करा देते हैं, बट हाँ कराना चाहिए इज व्हाट आई वुड से. दैट इज लाइक द बेयर मिनिमम, बट डोंट रिलाई ऑन इट कि ओ मैं तो हमेशा समझा रही है तो दिस इज अ साइन, ये तो बहुत सीरियस होगा मेरे को लेके. कुछ नहीं होता है ऐसा. Right. So the fifth and the last term, which is the opposite of pocketing, is soft launch. Okay. Oh, I love that word. In fact, मैंने अभी यूज किया था. ये मेरे को पहली बार पता चला कि सॉफ्ट लॉन्च क्या होता है. सानिया कहती है कि भाई ओहो ये है, मैंने बोला ओहो आहा. Anyway, so it's interesting. Yeah, so soft launch is actually slowly unveiling a new relationship on social media. The best way to do this is you go to the same place एंड तुमने एक स्टोरी डाली है और उस इंसान ने भी एक ही स्टोरी डाली है एंड तुमने उसको टैग करा है एंड उसने तुम्हें टैग किया, पर तुम दोनों की शक्लें नहीं दिख रही है या फिर खाली हाथ दिख रहा है, यू नो लाइक अ लिटिल सॉर्ट ऑफ लाइक अ टीजर. और साथ में तुम फोटो डाल रहे हो बट इट्स प्रीटी मतलब सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड ही होता है वो कि हाँ यू गाइस आर डेटिंग. तो कई बार सॉफ्ट लॉन्च में लोग बहुत स्ट्रेटेजिक भी हो जाते हैं, कई बार कॉय भी हो जाते हैं कि भाई हम बस थोड़ा सा हिंट देंगे, कोई स्मार्ट है पकड़ना है तो पकड़ लेगा. Exactly. I have done that. I have soft launched people. I love that. And some people are It's cute. And some people are super blatant कि भाई हम तो दुनिया को बता के रहेंगे, we'll make it supremely obvious कि हम वो तो बहुत अच्छी बात है. वैसे भी होता है, right? But I want to ask you, what are the pros and cons of soft launch? Because I think that is something that you have to understand कि I think नहीं pros ही pros है, मुझे तो ऐसे लगता है. Soft launch initial उसके लिए you should definitely soft launch because then it's like I am telling people that I am with this person, but I am also telling you know at this point I'm not that comfortable sharing extra details with you guys. But धीरे धीरे जैसे time passes and the thing becomes more serious between us, तो फिर photos together and all of that will also come through. So also it is called like soft launch and hard launch, just like with a product. So those are the terms used. So yeah, you have to soft launch people and then after a couple of months when you are sure in your relationship and all of that, you should definitely hard launch them as well. Yeah, well, I think there are cons to this also because मैंने यही बोला, अगर आप किसी को बता रहे हो जिसको जो आपके लाइफ में स्पेशल है या जो आपको अकाउंटेबल होल्ड करते हैं, आपके दोस्त हो गए, आपके फैमिली हो गई, किसी को तो बताओ जहां पे आप बता सकते हो. यहाँ पे सोशल मीडिया में क्या हो सकता है कि अ पर्सन माइट नॉट हैव एनी रेलेवेंट पीपल, कुड हैव ओनली फ्रिवलेस फ्रेंड्स और ओनली वर्क प्लेस पीपल और मे बी इट इज नॉट इवन रियल. बिकॉज अगर किसी रियल इंसान को नहीं पता है जो आपको अकाउंटेबल नहीं पकड़ सकता, यार आपने आज तो सॉफ्ट लॉन्च कर दिया साइकोलॉजिकल गेम खेलने के लिए कि बेबी देखो मैंने तो हमारे सोशल मीडिया पे डाला, दोनों को डालना होता है, वो भी एटिकेट होता है. इट्स नॉट जस्ट आल्सो सोशल मीडिया पे डाला, बट उस सोशल मीडिया में है कौन? अगर कोई भी क्या कहते हैं वैल्यू का इंसान नहीं है तो वो भी आप धोखा एक दिन पे दे ही जाओगे और क्या फर्क पड़ता है. धोखा देने के लिए तो लोग देंगे बट एटलीस्ट बेयर मिनिमम है. एग्जैक्टली. तो जस्ट जब आप सॉफ्ट लॉन्च करते भी हो तो डोंट जस्ट थिंक कि इट इज टेल ऑल एंड बी ऑल. ये नहीं है. दिस इज, आप इसके बाद भी क्या कहते हैं कोई आपको छोड़ के जा सकता है. हाँ एग्जैक्टली, दिस आई एग्री. सो हाउ कैन यू नेविगेट थ्रू सॉफ्ट लॉन्चेस कि मतलब भाई क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए प्राइवेसी को, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है यार. सॉफ्ट लॉन्च इज वेरी सॉर्ट ऑफ सपोज्ड टू बी सेमी फॉर्मल, मतलब दैट इज द होल पॉइंट कि इतना प्रेशर नहीं डाल रहे हैं तुम पे कि तुम शक्लें दिखाओ एंड ऑल ऑफ दैट. एट द सेम टाइम यू आर लेटिंग पीपल नो एंड भाई समझदार को इशारा काफी है. बट आई एम गोना आस्क यू दिस कि सॉफ्ट लॉन्च कब करना चाहिए? कि स्टार्टिंग मतलब लाइक 1.5 months. तो वो तो डेटिंग में हो गया. सॉफ्ट लॉन्च फिर वो नहीं करना चाहिए कि भाई मेरे को तो ये बंदा 3 महीने बाद या बंदी 3 महीने बाद पसंद आने लगी है, तो उसके साथ फोटो डालो भाई, हार्ड लॉन्च करो. फिर वो हार्ड लॉन्च होता है. हाँ उनके साथ डायरेक्ट फोटो डालना है हार्ड लॉन्च. सॉफ्ट लॉन्चेस जो मैंने बताया सेम जगह की पिक्चर्स डालो, probably food pictures, वो कुछ डाल रहे शेयर करो and tag both of you, cross tag each other and reshare each other's stories and probably go to a vacation. And when people know, so for example I tell people ki oh I am going to whatever A destination, the other person also says I'm going to A destination.
and both of you are sharing the same location की stories and you are cross tagging each other. That is soft launching. और कैसे बताएंगे कि हम साथ Why हैं? are you smirking? Why do I feel like this is something you've done in your I life? told I've done it. Was very cute. I liked it. In that moment, wasn't it? ऐसे जलन में ना कहीं लगा है, ठीक है? हाँ, in that moment it was super cute. Right. I wish So it lasted, on that but it is what it is. painful and funny moment, we're gonna close this mini series का पहला episode. Yay! Yay! All right, guys, keep listening. And also, अगर आप लोगों को कोई feedback देना है और आपको as a guest आना है, please reach out to us on our social media handles. I'm Paradoxoric and Sanya Dhawan is Sanya Dhawan. Look at her Instagram, you'll find her, or on X. But yeah, thank you so much, guys. Thank you for listening. Thank you. Bye. Bye bye.